Hey dear, welcome you all to the lecture number 8 of the course on this differential equation. As you all know, in this particular course, we are talking about the various topics related to the so-called differential equation topic. So in this lecture series, we have discussed so far 7 lectures along with you. So whatever I have discussed in those 7 lectures, so let me give you a brief introduction of those topics before we move ahead in this particular lecture and discuss the today's content. So in the lecture number 1, we started with the basic definition of the differential equation, talked about how to identify a given equation is differential equation or not, also talked about the basic concept of dependent variable and the so-called independent variable. And thereafter, we talked about the categorization of differential equation based upon the number of independent variables present in a given equation. And there we categorized into the 2 categories. The first one was the ordinary differential equation. Short notation for the ordinary differential equation was ODE. And the another one was the partial differential equation, of course. In the lecture number 2 and lecture number 3, we talked about the basic and all the different types of concepts regarding order and degree, how to find the order and degree of differential equation. We talked about the fine points regarding degree, that how to actually make the differential free out of the fractional power that we talked about. In the lecture number 4 and the lecture number 5, we talked about how to make a differential equation if a given function is there for all. And also in the lecture number so-called 6, we talked about the basic meaning of solution of differential equation. In the lecture number 7, we talked about the various types of differential equation. We are going to actually learn in this course. Those actually were variable separable format, linear differential equation, exact differential equation, homogeneous differential equation. And in that lecture, we started with the so-called variable separable form. So here I am in the lecture number 8. Continuing the lecture number 7 part where I have left off. So in the lecture number 7 where we were solving a basic problem, let me just show you the problem. So जो problem जिसका हम discuss कर रहे थे वो problem हमारा ये था, that is dy by dx is equal to x times of 2 log x plus 1 upon sin y plus y cos y. इसको हम solve करते करते थोड़ा सा आगे जो है हम चले गए थे और यहाँ तक पहुँचे थे हमारा, ठीक है. So let me just complete this particular problem before we move to solve another problem based on the variable separable format. So यहाँ तक solve कर लिए थे, तो अगर इसको हम further simplify करें तो this is y into sin y. 2 से अगर multiply करोगे तो finally पहला टर्म हो जाएगा x square log x और यहाँ पे माइनस का साइन x square by 2. बाहर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्लस का x square by 2, साथ में कांस्टेंट पड़ा हुआ है. Of course k is the constant of integration. माइनस का x square by 2 प्लस का x square by 2 हो जाएगा कैंसल. So the final differential equation solution you are going to get is y sin y is equal to x square log x plus constant of integration. So this is the differential equation solution. So let me just write it down in the end. It is the required solution of given differential equation. I hope ये problem जो है आपने last lectures के अंदर complete कर लिया होगा. So let me just move to the next question that is based on once again the so-called variable separable format. So आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि जो हम problem solve कर रहे हैं वो first order first degree differential equations को solve कर रहे हैं, right? So अगर हम इस differential equations की बात करें, देखते हैं हम कैसे इसको solve करेंगे. तो as usual जो languages हमें लिखना है वो क्या है? Simple जो differential equation दिया हुआ है उसको लिख देते हैं as the given differential equation is dy by dx, that is the first order differential, is equal to e raised to the power 3x minus 2y plus x square times of e raised to the power minus 2y. So अगर आप गौर से देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या हम x वाले टर्म्स को एक तरफ और y वाले टर्म्स को एक तरफ ला सकते हैं क्या? तो ये हिंट कहाँ से मिलेगा? ये हिंट आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर टर्म से. e की पावर माइनस 2y यहाँ पे पड़ा हुआ है और e की पावर में माइनस का 2y यहाँ पे भी है. तो अगर आप गौर से देखें तो हम e की पावर जो माइनस का 2y है वो दोनों टर्म से कॉमन निकाल सकते हैं. तो जो पहला टर्म आपका बच जाएगा वो बच जाएगा e की पावर 3x और दूसरा जो टर्म बच जाएगा दैट इज x स्क्वायर. तो अगर आप गौर से देखें तो ये टर्म है जिसके अंदर केवल x है, टर्म ओनली कंटेनिंग x. और अगर आप इस टर्म की बात करें तो ये जो वो टर्म है जिसके अंदर केवल और केवल जो है वो y है, तो और दोनों प्रोडक्ट में है. तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस y वाले टर्म को dy के साथ और ये पूरा x वाला जो टर्म है इसको dx के साथ लेकर के चले जाते हैं. आपको याद है ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट हम यही तो करते हैं.
सो अगर हम e की पावर -2y को हम इधर लेके चले जाएं तो ये फाइनली बन जाएगा dy अपॉन e की पावर में माइनस का 2y, और इस dx को अगर हम इस तरफ लेके चले जाएं तो ये बन जाएगा e की पावर 3x प्लस x² dx। ओके, आगे क्या करना है, आगे अगर गौर से देखोगे तो ये डिनोमिनेटर में e की पावर -2y है, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर के पोर्शन में लेके जाएं तो ये बन जाएगा e की पावर 2y dy इज इक्वल टू बन जाएगा e की पावर 3x प्लस x² dx। अब क्या करोगे, सिंपल है, बाद में हमने बताया था आपको कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ता है ना सर। तो अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, देख लीजिए। तो अगर इंटीग्रेट करोगे दिस इज e की पावर 2y dy का इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस x² dx। आइए फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर दैट थिंग, और अगर लीनियर प्रेजेंट है तो उसे कोफिशिएंट से डिवाइड, तो 2y एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो कोफिशिएंट लीनियर कितना है 2, तो 2 से डिवाइड दे दीजिए इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन e की पावर दैट थिंग अपॉन लीनियर कोफिशिएंट से डिवाइड, x² का इंटीग्रेशन सिंपल सी बात है, पावर एक ऐड करो और उससे एक डिवाइड दे दो, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहो अगर तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ से e की पावर 2y/2 है, इस तरफ इन दोनों एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम 3 यहाँ पे एलसीएम ले लें ये बन जाएगा लाइक e की पावर 3x प्लस x³ प्लस यहाँ पे बन जाएगा k। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाऊँ तो फाइनली अगर हम देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे एक्सप्रेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 6। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू e की पावर 2y इज इक्वल टू ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ e की पावर 3x प्लस x³ प्लस 6k। ये कोई कांस्टेंट ही तो है ना, इसको मान लीजिए c बोल दीजिए। तो फाइनली जो आपका सोल्यूशन बन जाएगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 2y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e की पावर 3x प्लस x³ प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका जो है वो फाइनल सोल्यूशन हुआ, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो जितने भी टाइप्स के हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट वाले, वो सारे आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में जो है वो हेल्प ये कर रहा होगा। आइए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वंस अगेन देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या किया गया है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, यू हैव बीन गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू आर एक्चुअली टोल्ड टू सॉल्व दिस। सो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सिंपल सा लैंग्वेज लिखेंगे सर, क्योंकि हमें सेमेस्टर के एग्जाम्स में भी अपीयर होना होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि लैंग्वेजेस ना लिखें, डायरेक्टली सॉल्विंग पार्ट 2 पर जाएं। बट इफ एक्चुअली यू हैव टू अपीयर इन सब्जेक्टिव पेपर जहां पे आपके स्टेप्स की भी मार्किंग होती है तो लैंग्वेजेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो सिंस आई एम कवरिंग ऑल दोस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वेदर दे आर अपीयरिंग इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशंस और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग बोथ ऑफ द पार्ट, जिसको जो जरूरत होगा उस अपने अकॉर्डिंग, है ना, अपने अकॉर्डिंग चलते रहिए कैसे सॉल्व करना है। सो अगर हम देखें यहाँ से तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लैंग्वेज हमने आसानी से लिख दिया अच्छे से। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा होगा दैट इज xy² प्लस x टाइम्स ऑफ dx प्लस yx² प्लस y टाइम्स ऑफ dy इक्वल टू 0। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं y x करते रहते हैं कुछ चीजें, सबसे पहले अगर गौर से देखोगे तो हम dy by dx लिख ले, सो क्या, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें dy by dx इज इक्वल टू समथिंग अगर होना तो उसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले dy को एक तरफ लेकर चले जाते हैं, इनफैक्ट मैं dy को उस तरफ रहने देता हूँ dy वाला टर्म को, और ये जो dx वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेकर चला जाऊंगा। ये जो पूरा का पूरा टर्म है इधर प्लस साइन साथ है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऑफ कोर्स साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा दैट इज yx² प्लस y टाइम्स ऑफ dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ xy² प्लस x टाइम्स ऑफ dx। कुछ नहीं किया है, इस वाले टर्म को मैंने जो है वो राइट हैंड साइड में लेके चले गए, ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर इस y को कॉमन निकाल लो, इस बड़े वाले टर्म्स में से y कॉमन निकाल लूँ, ये बन जाएगा 1 प्लस x² dy, यहाँ पे माइनस, अगर इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस y² dx। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं क्या हम y वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को एक तरफ ले जा सकते हैं क्या। ये वाला टर्म x वाला है, ये वाला टर्म y वाला है, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, क्या बचेगा, तो दिस इज y dy, और जब ये 1 प्लस y² है ना, जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस y²।
और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस का x, और चूंकि ये वाला टर्म लेफ्ट में जा चुका है और लेफ्ट से क्या आया है, लेफ्ट से आया है 1/1 प्लस एक्स, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व करना है सर। अगर आप गौर से देखो तो जब दोनों तरफ सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करने जाओगे तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कैसे करोगे इंटीग्रेशन के लिए, तो जब कभी भी, है ना, ऐसी सिचुएशन अगर दिखे तो नीचे वाला देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे ना तो 2y आएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे ध्यान समझना, एक प्रोफाइल में बता रहा हूँ जो इंटीग्रेशन का आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपको ऐसा दिखे, है ना, कि एक्चुअली में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ध्यान समझना, डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, है ना, और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो इस तरह से, तो आपका आंसर सिंपली ln mod fx आएगा। कैसे, क्योंकि अगर fx को t पुट करोगे तो f dash x dx क्या बन जाएगा, dt, और ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रल हो जाएगा ln mod t, और t अपना है fx का, तो हमारा आंसर आ जाएगा ln mod fx। तो जब कभी भी ऐसा इंटीग्रल दिखे कि ऊपर में डेरिवेटिव और नीचे में फंक्शन, मतलब नीचे वाला का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो हम सीधा उसका आंसर ln mod डिनोमिनेटर वाला पोर्शन लिखते हैं। तो अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे में है तो इसका डेरिवेटिव 2y आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 2y जनरेट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसा जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव जनरेट करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 2 से हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज बिकमिंग 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कैंसिल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जो इंटीग्रल बन रहा है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब f डैश अगर गौर से देखो तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, तो ln mod डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ln mod यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, जब कहीं भी आपके इक्वेशंस के सारे टर्म्स ln में दिखे चाहे log में दिखे ना, तो आप कांस्टेंट को भी ln c मान लिया करें, उससे क्या होता है सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर हम कांस्टेंट को यहाँ पे ln c बोल दें तो देखते हैं क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा अपने पास, क्या मेरे पास ब्लैंक पेज है, कोर्स है, तो ये बन जाएगा ln mod 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ln c बोल दिया इस बार। अगर हम माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ln का c। आपको ऑफ कोर्स आपने 11th 12th के अंदर एक लॉगरिथमिक के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि ln a प्लस ln b होता है ln ab, मतलब सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ln c। अगर आप दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ सेम फंक्शन है ln, तो जो अंदर इनपुट होगा वो सेम रहेगा। तो फाइनली आपका जो सोल्यूशन बनकर के आ रहा है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो आई होप आपको जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी आपको ऐसा प्रोफाइल इंटीग्रेशन के अंदर दिखेगा तो इसका आंसर सीधा आप याद रखिए, क्योंकि कितनी बार आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितनी बार बैक सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। तो जब कहीं भी डिनोमिनेटर में एक फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो उसका इंटीग्रेशन सिंपली ln mod डिनोमिनेटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक होमवर्क प्रॉब्लम ये ले लीजिए और साथ ही साथ जो है एक होमवर्क प्रॉब्लम ये लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट्स आप ले लें। मैं फिर से कुछ सेकंड के लिए रोक देता हूँ इसको। एक सवाल ये है जो आपको होमवर्क में अंदर करने हैं, दूसरा सवाल ये है जो आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। होमवर्क प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पैरेलली जो कोर्स चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, उसके अंदर मैं लॉन्च कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी।